In the lecture. Okay. Today we are going to see the next subtopic on debentures. First of all, anyone can tell me the definition of debentures or the meaning of debentures? Anyone? What is the meaning of debentures? क्या होता है डिबेंचर का मीनिंग? Where, which source? Yes. Sir, debentures are the source of principals which help to raise the borrowed capital. Borrowed capital, correct. The word is borrowed capital, because the debenture is a borrowed capital, and it's not a owned capital. It is not a internal source of finance. It is outsider or external source of finance, the amount of which need to be paid after certain period of time to the creator who has given the money as a lender to the company form of organization. As I have discussed, the company form of organization is a huge, we can say, institute, or required the huge amount of capital, which may be owned capital or borrowed capital. They cannot satisfy their demands, they cannot satisfy their need of finance with the help of own capital only. That means with the help of share capital, they not mitigate their all the needs. They can purchase their assets and they can set up their production process with the help of share capital, but it is not it is not satisfying the all demand which are fed by the working capital, which are satisfied, fulfilled by the working capital. So for that purpose, it might be required a short term capital, and which is provided by the debenture capital. The word deber is the basic word for out of which the debenture word came. Deber is a, we can say, Latin word which was which means to owe, to give someone. मतलब आप किसी को लायबल हो पे करने के लिए, इसका मतलब होता है डिबेर लैटिन में. उसी से ये शब्द आया डिबेर से डिबेंचर इन इंग्लिश. तो हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं डिबेंचर, और इस डिबेंचर का अर्थ होता है कि आपको अमाउंट पेबल है. तो ये अमाउंट किसे पेबल है? कंपनी को पेबल है टू देयर क्रेडिटर्स, टू देयर डिबेंचर होल्डर्स. So debenture holders are the creditor of the company. Here we are going to see the characteristics and or we can say in simple word, features of debenture. Debenture characteristics are, first is a promise. They are promising, the company is promising to the debenture holders, to the creditor, that they will pay the certain amount of money with the return as in the form of interest. मतलब उनका जो इनकम है क्रेडिटर का, जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने डिबेंचर हमसे परचेज कर लिया था, कंपनी से परचेज कर लिया था, उसको रिटर्न, इन रिटर्न वी हैव टू गिव व्हाट? द इंटरेस्ट. So along with interest, we are going to pay, we are going to make a promise to them, to the debenture holder, that surely we will pay the debenture amount, principal amount, along with the amount of interest after a certain period of time. तो प्रश्न ये आता है कि, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि whether the interest is payable at the end of the debenture term, that is after certain 4 years or 5 years. No, it is paid yearly. इंटरेस्ट जो पेबल होता है डिबेंचर्स के अमाउंट पे, वो होता है ईयरली पेड. सो डिबेंचर इंटरेस्ट is the income source for whom? For the
डिबेंचर होल्डर्स। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, पहला है प्रॉमिस, सेकंड है फेस वैल्यू। What is the face value of debenture? It is a little bit higher than, it is generally higher than the equity shares and preference shares value, because debentures value the credit amount which have been provided or invested by the debenture holder is of normally big nominal value. उसका वैल्यू ही सेल करते वक्त 100 के मल्टीपल्स में जनरेट किया जाता है डिबेंचर्स को। सो फेस वैल्यू इज जनरली हायर देन इक्विटी शेयर्स। टाइम ऑफ रिपेमेंट, और इसका रिपेमेंट का टाइम कब होता है? किसका रिपेमेंट का टाइम? डिबेंचर का। हाउ इट इज पेड? इट इज पेड आफ्टर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इन कैश to the that debenture holders. So debentures are paid issued with the due date stated in the debenture certificate. जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है, फिर ये डिवेंचर सर्टिफिकेट ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है। दैट डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एज एन एविडेंस टू द डिवेंचर होल्डर, कि उनको ये प्रूफ देंगे हम कि आपको ये डिवेंचर सर्टिफिकेट जो हमने दिया है, इतनी अमाउंट का आपने इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी में किया है, एज अ क्रेडिटर योर रोल इज देयर, and surely we will pay the mentioned rate of interest on the debenture certificate which we have written there, which we had mentioned there. At that amount we will pay the interest to you, and also the principal amount after certain period of time. So that third thing is what? Time of repayment. After certain period of time, the after the maturity date, on the maturity date the debenture amount is payable. तो ये डिबेंचर्स पेड किए जाते, या फिर उसी डिबेंचर्स को रिन्यू भी करते आता है। ऐसा नहीं है कि डिबेंचर होल्डर जो है उसका टर्म खत्म हो गया और डिबेंचर सर्टिफिकेट का जो एक्सपायरी पीरियड अभी आया है, एक्सपायरी का डेट आया है और उसे रिपेमेंट करना है, तब उसे आप ये भी ऑफर दे सकते हैं कि आप इस डिबेंचर को रिन्यू कर लो, न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लो। सो कंपनी विल अलॉट देम न्यू नंबर्स एंड आल्सो they will get invested the similar amount of debentures along with interest. Suppose if the debenture amount is 10,000 and the interest payable on that debenture is rupees 2,000 in total for the supposed to be 4 years he has invested. तो 2000 प्लस 10,000 टोटल हुआ डिबेंचर का पेबल वैल्यू टू दैट क्रेडिटर, टू दैट डिबेंचर होल्डर 12,000। ठीक है, तो ये 12,000 उसे पे करना था, मैच्योरिटी डेट आ गया, कंपनी कैन आस्क देम टू रिन्यू द डिबेंचर्स, और इफ ही इज नॉट विश टू, द कंपनी विल गिव द 12,000 अमाउंट बाय द चेक टू दैट पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर, or if he wishes to renew with the 12,000, the new debentures value will be, face value will be 12,000। तो नए डिबेंचर का वैल्यू जो होगा वो कुछ अलग होगा, उसके नंबर्स अलग होंगे, क्योंकि पिछला डिबेंचर का वैल्यू 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, अभी डिबेंचर का वैल्यू 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। सो इट इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड। सो राइट टाइम ऑफ रिपेमेंट इज ऑन मैच्योरिटी डेट। थर्ड फीचर देख लिया, पहला देख लिया प्रॉमिस, व्हाट दे विल प्रॉमिस टू पे द प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। सेकंड is the face value which is in multiple of hundreds, which is a more than equity share value, and number 3 is the time of repayment. When it is repaid, it is repaid at the maturity date of the debentures. Next is the interest. You know that just I have discussed the rate of interest. Just remember that the rate of interest on these debentures is fixed होता है, मतलब आपको उसी फिक्स रेट से आपका डिबेंचर पे इंटरेस्ट उस डिबेंचर होल्डर को देना है। otherwise he can claim that it is mentioned in your debenture certificate, in my debenture certificate it is mentioned that this was the particular rate of interest and you have not paid it, so he can take action against the company. So interest must be
paid as per the agreed rate of interest which have been mentioned in the debenture certificate, and company have to pay it to the debenture holder. So interest is a fixed rate of interest is there. It is not dependable on the profit amount. जैसे आपने देखा था किसके बारे में, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर के बारे में, किसका डिविडेंड, किसका डिविडेंड प्रॉफिट पे डिपेंडेबल होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। वेरी गुड। इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड में, डिविडेंड फॉर्म में होता है, और वो रिटर्नेबल है। कैसा वो कैसे दिया जाता है? एज पर द चेंजेस, एज पर द फ्लक्चुएशंस इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इफ नेट प्रॉफिट दे हैव अर्न मोर, they will pay more the dividend to them, to the equity shareholder. They will offer more dividend amount. If they have less amount of net profit, they will pay less amount of dividend. They can do it, the company can do it, or they can postpone the payment of dividend in the case of equity shares. In the case of debentures, they have to pay fixedly the certain rate of interest to the debenture holder. So it is a fourth feature, interest. नंबर 5 एश्योरेंस। जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको सबको ध्यान में रखना है और उसके नोट्स भी निकालने हैं, ठीक है? ये 4 फीचर्स मैंने डिस्कस कर लिए। आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इज द इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर। ओके, डिबेंचर होल्डर। नंबर 5 एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट का एश्योरेंस कंपनी को देना ही पड़ेगा, मतलब एश्योरेंस होता भी है। इट इज ऑल्सो मेकिंग द चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब अगर डिबेंचर होल्डर को आपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इन दोनों में से कोई भी चीज आपने देना अवॉइड कर लिया, या फिर पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट के बाद आपने उनको पेमेंट नहीं किया, सो दे कैन टेक द चार्ज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के उस फिक्स एसेट्स की नीलामी करनी पड़ेगी, बेच देनी पड़ेगी, जिस पे चार्ज रखा था डिबेंचर होल्डर्स के प्रीपेमेंट का। मतलब सपोज टू बी इट इज अ मशीनरी ऑफ 5 लाख रुपीज, and also we had purchased debenture, we had issued debentures, company had issued debentures of rupees 3 lakh। हमारी कंपनी की मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख, और 3 लाख का क्या है आपका? डिबेंचर्स वैल्यू है। तो आपको 3 लाख का along with the interest supposed to be 3,50,000 आपको रिटर्नेबल है। एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड अगर ऐसा होता है, मैच्योरिटी पीरियड खत्म, मैच्योरिटी डेट आ गया, एंड कंपनी कैनॉट पे 3,50,000 टू द डिबेंचर होल्डर्स, इन दैट केस व्हाट कैन बी हैपनिंग, क्या हो सकता है उस केस पे? उस केस में कंपनी को वो मशीनरी बेच देनी पड़ेगी। दे हैव टू सेल आउट द मशीनरी एंड दे हैव टू पे 3,50,000 टू द टू हुम? टू द डिबेंचर होल्डर। सो इट इज एश्योरेंस। यहाँ पे एश्योरेंस मिल गया उनको कि यस, मेरा जो कैपिटल है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर्स में किसी कंपनी में, मुझे उसका रिटर्न मिलने वाला है। So it is assurance for repayment. Generally, it is a long-term debt. It is what? Long-term debt. Debenture is a long-term debt. Number 6. नंबर 5 हो गए हमारे फीचर्स। 6th फीचर इज पार्टीज टू डिबेंचर्स। तो इस डिबेंचर्स में कौन सी पार्टीज होती है? व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टीज हियर? फर्स्ट इज अ कंपनी, क्योंकि एग्रीमेंट में पहले कौन कैपिटल कौन रेज कर रहा है यहाँ पे? कंपनी के लिए कंपनी खुद कर रही है। किसके थ्रू कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर। मतलब 2 पार्टीज यहाँ पे फिक्स हो गई, एक तो कंपनी है, दूसरा कौन? आपके डिबेंचर होल्डर से जो कि पर्सन है। ठीक है, 2 पार्टीज आपको समझ में आ गई। थर्ड पार्टी यहाँ पे जो समझ लेना बहुत जरूरी है, दैट इज थर्ड पार्टी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड पार्टी, और दूसरा नाम है उनको ट्रस्टी। क्या नाम है? ट्रस्टी। That trustee is a party through whom the company deals with the debenture holders. इन ट्रस्टी की तरफ से हम डिबेंचर होल्डर्स से क्या कर सकते हैं? ये एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल ले सकते हैं। सो इट इज अ थर्ड पार्टी बिटवीन देम, कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स।
So they are making the deal in between these two parties. They are working like an agent. So trustees are the third parties. The company makes an agreement with the trustees and debenture holders. दोनों की तरफ से, दोनों के साथ जो एग्रीमेंट करने वाली पार्टी जो है वो है ट्रस्टीज, ठीक है. सो दे आर द मीडिएटर बिटवीन देम. इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड. जो उनमें करार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है क्या? ट्रस्ट डीड. मैंने जो अभी अभी रकम आपको बताई थी 3,50,000 इज अ मिगर अमाउंट. There is a lakhs and crores of big figures, 1,000 crores big figures in debenture capital. So it is required to debenture holders. There must be a certain assurity. अगर कंपनी ने कल शट डाउन कर लिया और हाथ ऊपर कर लिए तो ये डिबेंचर्स वाले क्या करेंगे फिर? उनके पास उनका बहुत सारा कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टेड था. So they will be get frustrated. At the same case, there must be a certain person to whom they must ask the question, where is my money? Whether it is invested in company and that company is working in a progress or not. So there must be an agreement, there must be a written work, and that written work is made by whom? The trustee. तो ये ट्रस्टी जो होता है, इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी एंड राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. इस ट्रस्ट डीड में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या क्या लिखा होता है, वो यहाँ पे बताया कि आपके डिबेंचर होल्डर्स के राइट एग्जैक्टली क्या है, कि उनको क्या क्या क्वेश्चंस कंपनी को वो कर सकते हैं. ओके. एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी. कंपनी के लिए भी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, वो उनका मनी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी ट्रस्ट डीड सोचता है, डिसाइड करता है. डिसीजन मेकिंग पावर ट्रस्टी के हाथ में होगा. नेक्स्ट इज सेवेंथ फीचर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. So what is the right of debenture holders? Whether they can vote in the general meeting. Anybody can tell? जनरल मीटिंग में या फिर किसी भी मीटिंग में डिबेंचर होल्डर्स कोई वोट कर सकते हैं क्या? ओके, उन्होंने कैपिटल तो इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, उनका कैपिटल हम यूटिलाइज कर रहे, पर वेदर दे कैन वोट इन द मीटिंग्स? बताओ बताओ. सर नो. नो सर. ओके, स्नेहा का मैसेज आ गया. और एनी? हाँ एनी. सर मैंने भी बोला ना, नहीं. नहीं. ओके, नहीं कर सकते. ओके, मतलब ये हक किसका है? ये हक, ये राइट बस किसके लिए है? ये राइट रिजर्व है बस शेयर होल्डर्स के लिए है. कौन से शेयर होल्डर्स? वो शेयर होल्डर का नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स. In certain case only, preference shareholders, whether their interest is involved in the matter, then only the preference shareholders can vote in the meeting. Otherwise, the right is reserved up to the only equity shareholders and somewhat with the board of directors when board meeting is there. So seventh feature is rights, and now eighth feature, terms of issue of debentures. Company कैसे उसके डिबेंचर्स इशू कर सकते, क्या क्या टर्म्स है? तो उसके लिए 3 वैल्यूज डिसाइड किए. एट पार, एट डिस्काउंट दे कैन, और एट अ प्रीमियम दे कैन इशू द डिबेंचर्स. अभी ये तीनों चीजें क्या है? इशू मतलब क्या? टू सेल. इशू का मतलब क्या? टू सेल. इशू का दूसरा अर्थ मत लेना, इशू मतलब मैटर नहीं. यहाँ पे इशू मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सेल ऑफ द दैट पर्टिकुलर डिबेंचर्स. तो ये इशू कैसे हो सकता है? 3 टाइप्स में हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. एट पार मतलब एट द सेम वैल्यू विच इज अ फेस वैल्यू. एट प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, एंड एट डिस्काउंट मतलब लेस देन फेस वैल्यू. सपोज 100 इज अ, नहीं 100 नहीं लेंगे, डिबेंचर के बारे में बात कर रहे, 1000 ले लेते हैं. 1000 इज द 1 डिबेंचर वैल्यू. So face value, at 1000 they can sell. Premium मतलब suppose 1100 they can sell, or at discount मतलब 980 they can sell. So that 3 values can be, at these 3 values they can sell they can issue their debentures. ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है.
Second, according to Companies Act, company cannot issue debentures carrying voting rights. जिन डिबेंचर्स पे वोटिंग राइट्स होते हैं, ऐसे डिबेंचर सेल करने के लिए कंपनी को मना कर दिया है। किसने? कंपनीज एक्ट ने। फिर कंपनीज एक्ट कौन सा है अभी? 2013 का है। और तीसरी कंडीशन, थर्ड टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इश्यू द डिबेंचर्स। मतलब ये होल एंड सोल राइट किसके हाथ में है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। डायरेक्टर्स, बोर्ड मतलब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिमिलर मीनिंग है। बोर्ड मतलब क्या? ये जो डायरेक्टर का एक पूरा जो बॉडी है कि 3-4 लोग होते हैं बॉडी में इन्वॉल्व, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये 3-4 लोग या 5-6-7 जो भी जितने भी नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसाइड करेंगे मिलके इन द बोर्ड मीटिंग whether to issue the debentures for the further requirement of the capital. This was the 8th feature. 9th feature, security. Debentures can be secured with the some property of the company. जैसे मैंने अभी बताया फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट, आपने मशीनरी का एग्जांपल लिया था, अगेंस्ट द सम प्रॉपर्टी दे कैन सिक्योर द डिबेंचर्स. So they are not securing only debentures, they are securing to whom? Debenture holders, कि उनका पेमेंट श्योरली उनको मैच्योरिटी डेट पे मिल जाएगा. So security is a 9th feature. And 10th feature is listing. Debenture must be listed with at least one recognized, underline this word, recognized stock exchange. रिकॉग्नाइज मतलब जो जिसके लिए मान्यता दी गई, जिसको परमिशन है, जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, डिफरेंट सिटीज में स्टॉक एक्सचेंजेस है. तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे डिबेंचर्स को लिस्टेड करके हमें वो डिबेंचर्स इशू करने, मतलब हमारी कंपनी भी कैसे चाहिए? हमारी कंपनी भी लिस्टेड चाहिए. इसके लिए मतलब हमारी कंपनी भी अधिकृत चाहिए, ऑथोराइज्ड चाहिए, जिसका लिस्टिंग ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है. So listed companies can sell listed debentures at least listed with the one stock exchange. This is the primary feature of the debentures. You understood 10 features? Are you? Yes. No. So what is the first feature? Promise. Second, face value. Third, time of prepayment. Time of prepayment maturity date को होता है. Interest is income. Assurance of repayment. Then parties involved in the debentures. Then और क्या सुना हमने? बोलो. Rights सुना. और security. Security. Very good. Listing. Correct. और terms of issue of debentures. Isn't it? एकता लेट हो गई. Okay. Without on giving the short notice, you have joined the meeting. Thank you for it. Next lecture हम जरूर लेंगे और एक, और इसके भी नोट्स जो है ये आपको भेज दूंगा. ठीक है? Is it sufficient for today? Yes, sir. Okay. Left हो जाओ. Thank you, sir. Thank you.